আন এক সুখৰ বতৰা বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমবাসীলৈ আহিল এটা ভাল খবৰ। এবাৰ অসমীয়া গহনাই লাভ কৰিলে জিআই টেগ। অসমীয়া ঐতিহ্য সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত অসমীয়া গহনাক প্ৰদান কৰা হৈছে ভৌগোলিক সূচকাংক অৰ্থাৎ জিআই টেগৰ স্বীকৃতি। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে জনালে এই ভাল খবৰটো। 2018-19 বৰ্ষৰ বাজেটত অসমৰ শিল্পীসকলৰ সুৰক্ষা আৰু স্বীকৃতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। এই প্ৰস্তাৱে লাভ কৰিলে ন্যায্যতা। অসমীয়া গহনা উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত আটাইলৈ তথা অসমবাসীলৈ এই গৌৰৱময় মুহূৰ্তত আন্তৰিক অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিশা তিনিচুকীয়াৰ নপুখুৰীৰ সমীপৰ পথ অৱৰোধ। ছট পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিদিয়াক লৈ উত্তেজনা। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে পথ অৱৰোধ একাংশ লোকৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। মটক ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত নপুখুৰীত ছট পূজা পতাৰ চেষ্টা চলাইছিল বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে। দল সংগঠনৰ ধমকত জিলা আয়ুক্তই বাতিল কৰিলে ছট পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি। তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই প্ৰদান কৰিছিল অনুমতি। যেহেতু ৰাইজ ওলাই আহিব পূজাৰ কাৰণে, তো গতিকে লোকেশ্যনটোৰ ভিতৰতে এডোখৰ মানে ভাল লোকেশ্যন এটা চাই পেলাই তেওঁলোকে যাতে পূজা কৰিব পাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে, সেইখিনি আমি হ'ব বুলি তেওঁলোকক জনাইছোঁ। এতিয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ইয়াত গোটেই পুলিচৰ ফ'ৰ্চটো ইয়াত আছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও ইয়াত মেছেজ ৰিপৰ্ট কৰা হ'ব। গতিকে যাতে তেওঁলোকে কৈছে যে বেছি মানুহ নহয়, আগবেলা আৰু পিছবেলা মিলাই 200 মান হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে এইখিনি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা আমি কৰাই দিম। কোটিটকীয়া এপেক্স বেংক কেলেংকাৰীৰে নাম সাঙুৰ খাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। ৰাজেশ বাজাজৰ সমানে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বেংকৰ ধন উলিয়াইছিল লুৰিণে। এই অভিযোগৰ পাছতে এপেক্স বেংক কেলেংকাৰীৰ সামূহিক তদন্ত ঘোষণাৰ প্ৰত্যাহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। ছাত্ৰ সন্থাত ডিমাণ্ড বিল পাৰ্চেছ কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই এপেক্স বেংকৰ পৰা কমেও 40 বাৰ নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে পইচা উলিয়াই লৈছে। এপেক্স বেংক কেলেংকাৰীৰ নতুন মোড়। কোটিটকীয়া বেংক কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম। ৰাকেশ বাজাজৰ সমানে অনিয়মেৰে লুৰিণে হেনো উলিয়াইছিল বেংকৰ ধন। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক লৈ বৰ্তমান কিৰেণ ৰিজিজুৱে লোকসভাত ভাষণ দি আছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। क्योंकि अब देर रात ये चर्चा चल रही है, इसलिए मैं समय को देखते हुए बहुत विस्तृत रूप से अपना जवाब को नहीं रखते हुए संक्षेप मगर कोशिश करूंगा कि आपका जो पॉइंट्स है वो समावित हो जाए। वैसे तो कुछ लोगों ने जो पॉइंट उठाया है वो तर्क है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो तर्कहीन है। मैंने शुरू से बताया राजनीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं, जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब मैंने शुरू में ही कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ के सुनाया कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को
तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे? इसलिए अब देखो, ये अपना बात करके फिर जब समझाता है वो समझने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया ये समझेंगे। माननीय मंत्री जी, यहाँ सब विद्वान सदस्य हैं। आज मैं सर आपको शुरू से कहा कि सबको अपना बोलने का हक है, अधिकार है, लेकिन हल्के पलके में यहाँ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का संख्या बताइए, आप उसका यहाँ सदन में बात रखिए। ऐसे बैठे बैठे कमेंट पास करते रहेंगे, उससे तो कोई तरीका तो है नहीं है। जैसे कि हमारा कई सदस्यों ने, जैसे मैंने कहा, अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं सबसे पहले जो हमारा छोटा भाई समान है, लेकिन अभी कांग्रेस का डिप्टी लीडर है, गौरव गोगोई जी है, राजा जी है, कई लोगों ने मुद्दा जो उठाया उसको मैं पहले संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। आपने बोला कि ये वक्त बाय यूजर को कैसे ओमिट कर दिया है और इसका फायदा क्या है, इसको हटाने से क्या फायदा होता है। ये मैंने शुरू में भी कहा, अभी फिर से मैं उसको थोड़ा और ऐड करके बोलना चाहता हूं। ये जो वक्त बाय यूजर, चलते फिरते में कोई कहता है कि एक जमाने में यहाँ मेरा बाप दादा या उस जमाने में ये जमीन को ऐसा इस्तेमाल करता था, अगर कोई बोल देता है, अगर वक्फ बोर्ड कहने पर उस जमीन को, उस जगह को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, तो ये कैसे हम मान सकता है? कोई प्रमाणित रूप से अगर कहे कि ये उस समय वक्फ के लिए इस्तेमाल किया गया था, सर्टिफिकेट दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो फिर इसको वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। कहने पर, आप क्लेम करने पर इसको डिक्लेयर करेंगे, आप कैसे मान्यता दे सकते हैं? इसका कोई धर्म का बात ही नहीं है। कई लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका, हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सर, जो हम वक्त, मैं राजा जी, आपने इस बात को 2 बार दोहराया है। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर in informing my honorable colleagues that removal of waqf by user proposed in the bill is due to inadequate documentation, data supporting ownership of the waqf properties leading to disputes. There are huge numbers of disputes pending in the tribunals, and we have to ensure that this speedy justice is delivered. Whatever possible effort we have to do, we must do. Otherwise, justice delayed is justice denied. We know thousands of cases are pending in the tribunals and the courts. How can we be just ignorant about things happening before us? We have the records in the hand. We have to take some proactive steps. So when we take certain provisions into consideration, there is a considered opinion applied in taking the particular step. There are numerous examples I can cite, but I don't want to take much time because much has been deliberated upon it. सर, वक़फ़ और औलाद के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया। हमारा ओवैसी साहब बहुत विद्वान हैं, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक़फ़ और औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या आवश्यकता है? तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए हम इस यहाँ पे प्रावधान लेके आ रहा है। एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश का नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे? तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहा है, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो,
चाहे वो ऑर्फेन्स अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है। गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलीस का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए। मैं उसको सही करके बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि बोर्ड को सपोर्ट करने के जगह वो पैसे को गरीबों के लिए ज्यादा इस्तेमाल करें। जो औकाफ है उसको डेवलप करने के लिए और भी रिसोर्सेस उसके पास रहे। हम तो चाहते हैं कि वेलफेयर के लिए काम हो, तो उसका प्रावधान को बढ़ाने का किया है। तो मैं ये करेक्शन के तौर पर आपको कहना चाहता हूं। कलेक्टर के बारे में ऐसा कहा गया कि कलेक्टर जो है बहुत बड़ा एक ऐसा ये पोजीशन, ऐसा एक कुर्सी है जो सिर्फ हम लोगों को नुकसान करने के लिए बैठा है, और कलेक्टर पोजीशन को विश्वास नहीं करना चाहिए। इतने सालों से कलेक्टर का जो बेसिक जॉब होता है वो रेवेन्यू, प्रशासन और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था के लिए कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर ऑफिसर होता है। अगर हम कह दें कि हम कलेक्टर को विश्वास ही नहीं करेंगे, आप सोच के देखिए फिर हम विश्वास किसको करें। तो इसलिए कलेक्टर जो है किसी पार्टी का नहीं होता है। कलेक्टर एक ड्यूटी बाउंड ऑफिसर होता है और जिम्मेदारी के साथ वो अपना ड्यूटी निभाता है। इसलिए कलेक्टर के ऊपर में प्रहार करने का जगह हम सब अगर ये सुझाव देते कि वक्त प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में और क्या सुदृढ़ और क्या अच्छा कदम उठाया जा सकता है, अगर ये सुझाव आते तो मैं उसका वेलकम करते, मैं उसका स्वागत करते। लेकिन अब कलेक्टर के बारे में आप लोगों ने एकदम इतना अविश्वास मत किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा किसी अधिकारी के ऊपर में नहीं करना चाहिए। और कोई भी अधिकारी गलत काम करता है तो उसका तो अपना उसका डिसिप्लिनरी एक्ट अलग होता है, प्रावधान होता है। सर, जो अपील का प्रावधान किया है उसका थोड़ा डीपली आप समझना होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रावधान था, कई मेंबरों ने कहा। सर, रिट और सूट का अंतर को समझना होगा। जो रिट पिटीशन होता है वो कितना रेस्ट्रिक्टिव होता है और उसमें वो डिस्क्रिशनरी होता है। सर, उसमें आपको कोई अपना हक है, अपना अधिकार हिसाब से आप जा नहीं सकता है, उसका बहुत सीमित उसमें विंडो खुला होता है। लेकिन जब सूट होता है वो आपका अधिकार होता है। आप जब भी जाकर के आप सिविल कोर्ट में जाकर के कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर होता है वो सिविल कोर्ट में जाता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अधिकार के तौर पर। लिमिटेशन के बारे में कहा गया है। लिमिटेशन के बारे में मेरा जो जितने भी हमारे जो साथियों ने कहा है, आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन जो क्यों हमने इसमें अप्लाई किया है, किसी ने कहा है कि लिमिटेशन जो है यहाँ में बाकी जगह में भी है, बाकी जगह में भी है, और यहाँ कंपेयर करने का कोशिश किया, मैं उसको बताना चाहता हूँ। आपने जो एग्जाम्पल दिया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन यहाँ क्यों लगाया और हिंदुओं में क्यों नहीं लगाया, रामलला का एग्जाम्पल दे करके मैं बताना चाहता हूँ, आप समझ जाएगा। रामलला का वहां में लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाया क्योंकि रामलला माइनर है और उसी हिसाब से उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन का वहां एप्लीकेशन हुआ है। और यहां हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर हम लॉ ऑफ लिमिटेशन लगा करके किसी भी चीज का संरक्षण कर सकते हैं या उसको डिस्पोजल में हम ज्यादा स्पीड से मदद कर सकता है तो अप्लाई करना चाहिए। अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन हम हटा देंगे, जहां जरूरत है वहां से हटा देंगे और अब बरसों तो किसी भी चीज का मर्जी से क्लेम कर सकता है, तो आप सोच के देखिए ऑलरेडी इतना केसेस पेंडिंग है, उसमें कितना और बढ़ोतरी होगा। आप नहीं चाहता है क्या केस का डिस्पोजल जल्दी हो? तो ये सारा चीज जो है आप लोग
अलग अलग कई लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन बहुत सारा लोगों ने नहीं किया। सर, गृह मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण देने के बाद भी फिर से 2-3 मेंबर ने ये चीज को उठाया। मैंने सोचा इतना खूबसूरत से एक्सप्लेन किया माननीय गृह मंत्री जी ने, तब तक तो ये मैटर सेटल हो गया मैंने सोचा है, लेकिन फिर से उठाया गया है। देखिए सर, ये जो वक्फ और वक्फ बोर्ड, इसका अंतर को फिर से जो गृह मंत्री जी बताया, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। आप कहते हैं कि ये मुसलमानों का मामला है और धार्मिक मामलों में गैर मुसलमान कैसे आ जाते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर भी आपको पढ़ के सुनाया, एक्सप्लेनेशन भी किया, इलस्ट्रेशन भी दिया, फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी जो वाकिफ होता है वो मुसलमान ही होता है, वही क्रिएट करता है। औकाफ को कौन चलाता है, उसका मुतावली चलाता है, वो मुस्लिम ही होता है। यहां में गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आने का संभावना कहां है, वो बताइए। जबरदस्ती बोलता है कि नॉन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी और मुस्लिम का रिलीजियस अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं। सर, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं। सच्चाई को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं किस भाषा में समझाऊं सर। मैं तो परेशान हो गया कि गृह मंत्री जी इतना समझाने के बाद ये मैटर नहीं उठना चाहिए। सर, मैंने बहुत ध्यान से सबका बात सुना है। ये एक एक पॉइंट में जवाब दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक डिटेल में आपको जरूर बताना चाहता हूं। जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टी हमारा पोर्टल में है, मैं उसका जिक्र सदन के सामने में शेयर करना चाहता हूं। चैरिटेबल पर्पस के लिए हम लोग कहते हैं, कैसे इस्तेमाल हुआ है, कितना हुआ है, आप खुद सुन लीजिए। हमारा देश में हमारा वामसी पोर्टल का हिसाब से टोटल स्कूल कितना है, 1389 एकड़, उसमें 0.037% वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मदरसा कितना है, 1,85,756 एकड़ है, और इसमें वेलफेयर के परसेंटेज कितना है, 4.9%। मुसाफिर खाना कितना हमारा देश में, 4,710 एकड़, कितना परसेंटेज वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है, 0.12%। ये चैरिटेबल का मैंने बताया। और कमर्शियल का कितना प्रॉपर्टी है और वेलफेयर के लिए कितना इस्तेमाल करता है। एग्रीकल्चर लैंड 6,27,692 एकड़, सिर्फ 16.7% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल बिल्डिंग 5,994 एकड़, सिर्फ 0.1% इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से घर है, ऑर्चार्ड है, प्लॉट है, फिशिंग पॉन्ड है, दुकानें हैं, कई ऐसे प्रॉपर्टी जिसका परसेंटेज 1% से भी कम वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिलीजियस जगह जो है, जैसे ईदगाह है, 2,85,256 एकड़ है, 7.6% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इमाम बाड़ा और चौकी करबला जो है, मोस्क, तकिया जो मजार या दरगाह होते हैं, ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान कहते हैं, सबका हमने जो देखा है वेलफेयर के लिए इस्तेमाल का परसेंटेज 1% से भी कम है, और 1% से ज्यादा है तो बहुत कम है। इसलिए मैं डेटा में नहीं जाते हुए, क्योंकि डेटा देने का इतना ज्यादा डेटा है, आप लोग डेटा सुन के बोर हो जाएंगे। বাতৰিখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন।